Ding 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 ding. करता रहता हूँ मैं. ठीक है जी. So we have got a change now. We have now changed the title to the universe, Earth, life, and humans. Earlier it was almost the same as well. It was World UN Cash 22. So essentially, then the world has been expanded to this, and you are there in one sense in the human cycle, and then the sense there is Cash 22 as well. It's just like immensity has been given probably more space, if we may use that word. बाकी तो सब ठीक है. We shall see. It will again change obviously naturally. So universe has a lot of stars. Hmm. It also has black holes, it also has dark matter, dark energy, and probably also many other things as well. And it's just as if that this much we have explored already. Correct? Voyager 1 has been sent. Voyager 1, Voyager 2, और भी कैसे नहीं हाइगन्स को मरकरी पे भेजा गया था. तो इस तरीके से उन्होंने डिसेंट जो नासा है उसने ठीक ठाक जो है वो स्पेस मिशंस भेज रखे हैं. ठीक है. और उसका तो ये कोर मतलब कोर एक्टिविटी है नासा की ये स्पेस मिशन भेजना और बेसिकली सिक्योरिटी मेंटेन करना स्पेस पे हार्मोनी स्पेस पे मास्टरी गेन करके स्पेस की अंडरस्टैंडिंग गेन करके अल्टीमेटली जो नेशनल सिक्योरिटी की वो ऐसे बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के तौर पर. और फिर नेशनल सिक्योरिटी की अगर स्पेस के टर्म से बात की जाए तो फिर एस्टेरॉइड्स एंड है ना पता नहीं क्या क्या कुछ भी हो सकता है. ब्लैक होल का रेडिएशन आ जाए फिर एनीथिंग है ना विच कैन इफेक्ट देम एज अ नेशन. If possible, they can deport themselves if they want to some other star or some other planet or things like that. ठीक है. तो ऐसा है तो ये कर रहे हैं काम उस प्रोसेस में फिर अर्थ उनके लिए एक प्लेस बन जाएगा. ठीक है. लाइफ तो वैसे भी उन्हें बहुत ज़्यादा मैटर रहता नहीं है एक सेंस में. एंड सेम गोज फॉर द ह्यूमंस और उनकी वहाँ की पॉपुलेशन भी है. यूएस फिट को जो बढ़ाना रहता है वो बढ़ाता ही है. So universe as we know it is largely dependent upon the NASA or the work the kind of work that it has done. Maybe in the future more and more people, more and more countries will be conducting those kind of missions. But as of now, Voyager 1 and Voyager 2 has gone the farthest. Okay, obviously China will try to catch up, but their progress also has been largely only focused around the moon itself right now. Correct, correct. Like US and China both want to go towards moon 2025 and 2027. Again, back again. And they have previously done so and they want to do it again. Correct, correct. Now let's move. Let's again talk about the universe. See, universe ultimately created the solar system, and in that we have got the Earth. Earth has got a decent amount of temperature. Earth has got water as well, and due to water, it has got water cycle, and it has also got land as well. It has got decent atmosphere, like it has oxygen and nitrogen and water vapor as well, things like that. Ultimately, this water is collected into oceans, and then life has flourished there. So that's why when we study planets which are in plenty, there are planets and stars both present. And stars are moving usually around the center of their galaxy, and planets are usually moving around the stars. Planets might also have moons as well, and in this all this everything is nothing else but due to explosion and gravity. Explosion puts the thing apart, and others gravitation ultimately might also
make the thing go apart a little bit as well, and over the time the things cools down. The thing cools down, and also uh, everything that has been surrounding it ultimately comes to its gravitation, either it or someone else's. Correct? So that way, then we see the configuration that planet has moons. So this also is a very crucial feature of our universe, that mostly things are revolving around things, and that is happening largely because of gravitation. So in that sense, gravitation is a very crucial force on the larger scale or on the smaller scale. And when you go inside the atom, then there is nuclear force, and then there is also electrostatic force, which is between the charged particles. Correct? Strong nuclear force and weak nuclear force. Only these four type of forces are there, as some of you must have studied in the concepts of physics by S. Verma as well. Correct? So let's move. Every other force is actually somehow in one way or the other generated by it. चलो भैया, और आगे आते हैं। यूनिवर्स के बारे में हमने बात की। यूनिवर्स में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं। वो मोशन कर रहे हैं सब के सब, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर रियली डूइंग द मोशन। ठीक है, दे आर यूजली डूइंग सर्कुलर मोशन, or for that matter elliptical motion. They are also doing rotation as well, and in between there is usually huge distance as well. Distance on a universal scale is usually expressed in light years. How much distance? Because the light has constant speed. That's why uh, the distance that light travels in 1 year becomes light year. And light is something which keeps traveling all through the universe. It's like this. Hmm? It may come 14 billion years behind. So light is a very fundamental thing. Ultimately, it comes from stars. Correct. So in the universe, we have got distance. In the universe, we have also got motion as well. We also have got light in the universe. Universe is not ultimately too dark. There is enough light being created, and light ultimately being electromagnetic radiation. The whole of the spectrum of the visible light, and then the ultraviolet and infrared, and I don't know what not access and things like that. Ultimately all this becomes then wave motion, and that then wavelength and frequency matters. These things ultimately determine. Correct? Correct. So now when we study motion, we also study wave motion, and we also study particle motion usually. In that we also study simple harmonic motion as well, like the pendulum. It moves here and there. And that then we have in that time period, frequency, and wavelength, amplitude as well. These kind of things are there ultimately, as far as the physics is concerned. In the particle motion, we have F is equal to ma, v is equal to u plus at, and s is equal to ut plus half et square, etc., etc. In the wave motion, then we have got interference. Things move like this, wave moves like this. And fringes, we have got fringes. तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं. Okay, let's continue then. So what we have seen, there is universe, and then universe there is light because of the stars essentially. They are emitting light. Hmm? Usually that is resulting as a result of nuclear reaction happening at their core.
which can be either fusion or fission. Correct? Many a times it is happening that hydrogen and helium atoms, these are interacting because they are the simplest element in the periodic table. For the periodic table to happen, first of all, we need to go in the atomic structure. Before we can go in the atomic structure, obviously, naturally, we will need to go into the human body or the body of lives, body of living beings, or also other things, in the mountain, in the river, in the ocean, in the clouds, in the planes, in the brick and things like that. Whatever, there has to be certain sense of scale. From the human scale, you will go downwards or upwards. Correct? So scale is an important thing in our discussion, always it will be. So in that sense, scientific notation becomes important, which we usually express by like this. If 10 to the power 10 is concerned, then someone express like this, I guess, as far as I can remember. Something along this. We whatever be the number, we express it like this. Then we start saying it's like this somewhere. देख लीजिएगा. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन होता है, अदरवाइज मैं कभी बीच में देख के बता दूंगा होपफुली. ठीक है, चलो. तो ये हो गया. और है ना, तो हम लोगों ने चीजें देखी, उसमें हम फिर एटम के अंदर क्या हैं, है ना, और हम उसके अंदर भी गए हैं, लाइफ के अंदर, लिविंग बीइंग्स के अंदर भी. इस प्रोसेस में हमने एनाटॉमी देखी है उनकी, और अल्टीमेटली फिर हम लोग सेल के अंदर भी गए हैं. सेल स्ट्रक्चर हमने देखा है, प्लांट्स का भी देखा है, एनिमल्स का भी देखा है, और हमने दूर तक भी देखा है. तो उस प्रोसेस में हमने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बनाए. और ऐसा नहीं कि हमने इतना ही कुछ किया है ना, हमने लिटरेचर भी ठीक ठाक बनाया है, लिटरेचर, ड्रामा, पोएट्री, ये सब. तो उस प्रोसेस में हमने बहुत कुछ अपने अंदर भी देखा है. ऐसा नहीं कि साफ देखा ही नहीं है अपने अंदर. ठीक है. सो इट हेल्प्स. मैथमेटिक्स तो फिर इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमने डेवलप की है. ठीक है. तो हम लोग सेल के बारे में बात कर सकते हैं, एनाटॉमी की बात कर सकते हैं. अल्टीमेटली यू विल हैव, है ना, इन वन वे और द अनदर, सूनर और लेटर यू विल हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड आल्सो लैंग्वेज. सो जो 10th और 12th तक की स्कूलिंग रहती है ना, उनका जो सिलेबस वगैरह है वो रिसेंटली सब कुछ कवर अप किए हैं. बट दिक्कत ये यूजली रहती है कि दो सिलेबस हैज़ बीन फोर्स, है ना, वो आपकी क्यूरियोसिटी से नहीं निकला होता है. It doesn't really cater to your curiosity, so that becomes a difficulty. But ठीक है, let's move. अब हम क्या बात करें, फिर यूनिवर्स पे आ जाते हैं. जब तक चल रहा है चलने दो. तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स तो हैं ही गैलेक्सीज के अंदर. और ये सारी गैलेक्सीज हैं, ये भी घूम रहे हैं, ये भी मूव कर रही हैं. और यूजली ऐसा देखा गया है कि these galaxies are ultimately moving at a very fast rate and moving away from each other. हालांकि गैलेक्सीज का दूसरी गैलेक्सी पे G1 G2 करके बात कर लोगे तो, है ना, इनका एक दूसरे पे नेट ग्रेविटेशन तो काम करता ही है अल्टीमेटली, है ना. दिस इंटरेक्ट एज वेल, गैलेक्सीज जो है वो इंटरेक्ट भी करती हैं. सो बाहर देखोगे तो हमें कई कई इस तरह के सीन दिखते हैं कि मिल्की वे से हमारा जो अगल बगल अगल अपने आस पास है एंड्रोमेडा, हमारी जो मिल्की वे है ना, इन दो, ये दो जो है ग्रेविटेशन का पुल तो होता ही रहता है ना. ठीक है, तो क्लस्टर बन सकते हैं गैलेक्सीज के, कहीं दो तीन चार बन रही हो, कहीं हो सकता है बहुत सारी और भी बन रही हो. ठीक है, सो क्लस्टरिंग हैपेंस.
cluster of stars as well as galaxies. It certainly happens in the universe. ठीक है, मैं ये पूरे साल बताता रह सकता हूँ, but keep going. सो जब आप यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो यू स्टडी स्टार्स नेचुरली, है ना। आपको तो अर्थ से ही दिख जाते हैं स्टार्स। सन आपका एक स्टार है ही है, ठीक है। मून तो आपके बगल में ही रहता है, हर बार दिखता है। सो ऑब्वियसली नेचुरली यू विल स्टडी मून, देन यू विल स्टडी सन इफ पॉसिबल एट मैक्स बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में तो आप जितना चाहें उतना जानना ही चाहें, क्योंकि उन सबको तो आप सूनर और लेटर देख ही सकते हैं टेलीस्कोप वगैरह से, और उन्होंने देखा है ही है, ठीक है। सो इसलिए यूजली हम लोग बहुत तेजी से अपनी बातों में यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में बहुत तेजी से आ जाते हैं, टू फास्ट। बट रात में जो हमें तारे दिख रहे होते हैं वो सब के सब हैं। दिन में तो हमें एक तारा दिखता है, रात में हमें चांद के साथ कितने तारे दिखते हैं। दे आर ऑल सन्स। और वो कितनी दूर होंगे जो हमें इतने छोटे दिखते हैं, है ना। ऐसे ही हमने कभी नहीं सोचा था कि हम चांद तक जाएंगे। ऐसे ही हम कभी ये नहीं सोच रहे हैं, अभी नहीं सोच रहे हैं लास्टली कि यार कहाँ दूसरे तारे पे जाएंगे, बट हमने चांद पे कदम रख दिया सर। वी स्टेप्ड ऑन मून वेरी नेचुरली। इसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अभी मिल सकती है ना। आप मून पे ले जाके कुछ बना दो, वहां से फिर ले आओ वापस, वगैरह वगैरह की बातें, है ना। अब उतना आगे हम सोचते नहीं है, लेकिन इट इज पॉसिबल। आप एस्टेरॉइड की जो माइनिंग की बात है, एस्टेरॉइड माइनिंग, उसके लिए हम रूल्स बनाना चाह रहे होते हैं यहाँ पर। So rule making and rule following becomes an important issue as a Homo sapiens species. तो एक ये बात है, ठीक है जी। सही हो जाए भाई, क्यों परेशान हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए। तो हमने ये देखा कि नेचुरली आवर आइज, नेचुरली अगर कोई स्कूल ना हो, कोई कॉलेज ना हो, और कोई जॉब ना मिलती हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने से, ये तीन चीजें ना हो, तो भी आप 0 से 70 साल तक जिएंगे, ठीक है ना। उस प्रोसेस में आपको चांद, सूरज और तारे, ये तो दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। तो नेचुरली ही आप चाहेंगे कि आप उनके बारे में जानें, है ना, सूनर और लेटर। क्योंकि एज ए स्पीसीज हम लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं, और हम अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर ही सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस में हमने मैथ बनाई ही पहले, जब हमें गिनने की जरूरत पड़ी चीजों को, एक दूसरे से बांटने की जरूरत पड़ी, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो हमने जैसे ही ट्रेड तो बिना मैथ के हो ही नहीं सकता है ना। यू मेजर थिंग्स एंड देन यू मेजर मनी एंड देन यू एक्सचेंज, ठीक है। फिर आप कहीं जाते हैं मार्केट में खरीदते हैं, वगैरह वगैरह। सो उस बीच में मनी है, तो बिना मैथ में इनिशियल लेवल में हमें काउंटिंग की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हमें जो जरूरत पड़ती है उसके अनुसार फिर हमने मैथ को भी डेवलप करते गए अपनी साइड में, ठीक है। कई बार हमने ऐसे किया कि बस मैथ को डेवलप किया, बट उसका कुछ प्योर एप्लीकेशन नहीं है मिला हमें, है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं हुई। बट कई बार फिर हुआ कि बाद में वो कनेक्ट हो गई जाके, ठीक है, सूनर और लेटर, ठीक है। तो मैथमेटिक भी वो उतनी ही डिस्कवरी का पार्ट है जितना कि हम और भी किसी भी फील्ड में अपने कुछ डिस्कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो भी जैसे वहाँ अनंत है, जैसे वहां पर अनंतता है, वैसे यहाँ पे भी अनंतता है, अनंतता है। और 20th सेंचुरी में बहुत कुछ बदल गया है। 20th और 19th सेंचुरी में, और इवन इफ पॉसिबल 18th सेंचुरी में ले लो, तुम ये 3 सेंचुरीज ले लो, तो इसमें मैथ्स और फिजिक्स डिसेंट अमाउंट में डेवलप हो गई, और बहुत सारे और भी फील्ड जो नॉलेज के हैं वो डेवलप हो चुके हैं डिसेंट अमाउंट में, है ना। और उन सबके बहुत कोर में मैथमेटिक्स जरूर रही है, ठीक है। अब तो सोशल साइंसेस के अंदर भी काफी ढंग से घुस रही है, सोशल मीडिया और डेटा एनालिसिस और कस्टमर सेगमेंटेशन की वजह से, वगैरह वगैरह।
उस प्रोसेस में हमारा बिजनेस भी चेंज हुआ है, पॉलिटिक्स भी चेंज हुई, रूल्स लॉज पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इट विल बी टू मच एंड टू मच आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस इंटरेक्शन। तो है ना, आपको ये तो दिखेंगे ही नेचुरली। तो जब नेचुरली दिखेंगे सर, सो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, उनमें इंटरेस्ट आएगा तो आप जानना जरूर चाहेंगे ही चाहेंगे, है ना। इनिशियली आपकी जो मैथ होगी, फिर वहां से आप उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ज्योमेट्री करेंगे, है ना, कुछ बिल्डअप करेंगे। अल्टीमेटली यू विल, है ना, थिंक अबाउट गोइंग टुवर्ड्स मून और देन गोइंग टुवर्ड्स सन एंड थिंग्स लाइक दैट। उससे पहले आप अर्थ पे बहुत जगह इधर उधर जाएंगे, रथ बनाएंगे, पहिया बनाएंगे, है ना, गाड़ियां बनाएंगे, कार बनाएंगे, वो सब होगा ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, चलो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मूव जो करना है वो आपकी एक नीड तो है ही, बहुत बेसिक। कोई भी इंसान जीवन भर कुर्सी पे या फिर बिस्तर पे ही या फिर घर के अंदर ही नहीं बैठा रहता है, ना रह सकता, ना रहना चाहिए भी। ठीक, ठीक है। तो दिख रहा होगा कि हम लोग यूनिवर्स से सोलर सिस्टम पार करते हुए बहुत तेजी से अब अर्थ और ह्यूमंस और लाइफ से ह्यूमंस पे आ गए, है ना। ह्यूमंस हैव द नीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज वेल। ये दो नीड्स है और इन दोनों में हमने डिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है। डिसेंट नहीं, बम्पर टेक्नोलॉजी इनफैक्ट डेवलप कर रखी है। ठीक है, स्पेशली पिछली 3 सदियों में। अब ये रुकेगी नहीं टेक्नोलॉजी से, आगे भी जाएगी, जैसे ये ईवी की तरफ जा रही है, और ये 5G और फिर उसके फिर 6G की तरफ जाएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बस इतना ही बहुत है, मैं थक गया भी हूँ थोड़ा सा।